آئیے وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم اپنی آج کی اس عبادت کا آغاز کریں، اور عبادت کے شروع میں کلام مقدس میں سے ہم اپنی رہنمائی کے لیے پڑھیں گے زبور نمبر 113۔ خداوند کی حمد کرو، آئے خداوند کے بندو حمد کرو، خداوند کے نام کی حمد کرو۔ اب سے ابد تک خداوند کا نام مبارک ہو، آفتاب کے طلوع سے غروب تک خداوند کے نام کی حمد کرو۔ خداوند سب قوموں پر بلند و بالا ہے، اس کا جلال آسمان سے برتر ہے۔ خداوند ہمارے خدا کی مانند کون ہے، جو عالم بالا پر تخت نشین ہے، جو فروتنی سے آسمان و زمین پر نظر کرتا ہے۔ وہ مسکین کو خاک سے اور محتاج کو مزبلہ پر سے اٹھا لیتا ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آئیے وقت ہے کہ ہم کچھ وقت کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خاموشی میں کچھ وقت گزاریں، اپنے آپ کو خداوند کی حضوری کے لیے تیار کریں۔ اے پیار سے بھرے ہوئے آسمانی باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں آج کے اس خوبصورت موقع کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں دیا، کہ ایک دفعہ پھر آسمانی باپ ہم یہاں اکٹھا ہو سکیں اور اے باپ مل کر تیرے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ آسمانی باپ، جیسا کہ اب اس وقت ہم اس عبادت کا آغاز کر چکے ہیں، تو تجھ سے منت کرتے ہیں کہ تو ہماری مدد کرنا، ہماری رہنمائی کرنا اور ہمیں توفیق دینا، تاکہ ہم اپنی دنیاوی سوچوں کو ایک طرف رکھ کے آسمانی باپ اپنا پورا دھیان تیری طرف لگائیں اور آج تیری حضوری کو محسوس کر سکیں، تیرے کلام کی باتوں کو سیکھ سکیں۔ آسمانی باپ، ان تمام خاندانوں کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں جو اس وقت ہمارے ساتھ اس زوم لنک کے وسیلہ سے جڑے ہیں۔ خدا تو ان خاندانوں پر اپنی شفقت والا ہاتھ ہمیشہ بڑھائے رکھنا اور انہیں توفیق دینا کہ آنے والے ہفتوں میں بھی اسی طرح یہ ہمارے ساتھ جڑتے رہیں اور ہم سب مل کر تیرے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ اب آپ خاص کر دعا کرتا ہوں آج ان تمام لوگوں کے لیے جو کسی وجہ سے ابھی تک ہمارے ساتھ جڑ نہیں سکے۔ خدا جو بھی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ ہمیں جوائن نہیں کر پائے، ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوندہ ان تمام وجوہات کو دور کرنا، تاکہ آسمانی باپ وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ سکے اور تیرا کلام مقدس زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، تاکہ ہم سب اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں۔ آسمانی باپ، دعا کرتا ہوں ان تمام لوگوں کے لیے جو اس عبادت کو رن کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ آسمانی باپ ہمیں ٹیکنیکل سپورٹ دیتے ہیں یا اور ارینجمنٹس کرتے ہیں۔ خدا ان تمام لوگوں کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے تیری خاص برکت چاہتا ہوں۔ خدا تو ان کے ساتھ ہونا، ان کو عقل، فہم اور دانائی دینا، تاکہ وہ اسی طرح اپنی ایبلٹیز کو استعمال کرتے ہوئے خدا تیرے نام کو عزت اور جلال دے۔ آسمانی باپ، اس عبادت کے شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا، یہ سب کچھ مانگ لیتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے پیارے خداوند یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔ آئیے وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آسمانی باپ کی حمد و ثنا میں ایک زبور گائیں، زبور 91، اس کا دوسرا حصہ، یا رب تو میری پناہ ہے سو تو ہے میری جان۔ میں ریکویسٹ کروں گا انکل البرٹ ڈینیل سے کہ وہ اس زبور میں ہمیں لیڈ کریں۔
آفت آئے گی پالی تیرے میرے وچنا کدی جاوے گی پالی تیرے میرے وچنا کدی جاوے گی یا رب تو میری پناہ ہے تو میری جان رب تیرے واسطے کرے گا فرشتیاں نو فرما رب تیرے واسطے کرے گا فرشتیاں نو فرما اے او سب تیریاں راہاں وچ تیرے نگہباں اے او سب تیریاں راہاں وچ تیرے نگہباں یا رب تو میری پناہ ہے سو تینو اپنے ہتھاں تے آپ اٹھاون گے سو تینو اپنے ہتھاں تے آپ اٹھاون گے پتھراں دے نال تیرے پیر نام دکھاون گے پتھراں دے نال تیرے پیر نام دکھاون گے یا رب تو میری پناہ ہے تو میری جان شیر سے سب لٹاڑے گا بچے اجگر بھی شیر سے سب لٹاڑے گا بچے اجگر بھی تو میرا سو تیرے اتے کدی وی نہ آفت آوے گی تپالی تیرے ڈیرے وچ نہ کدی جاوے گی۔ جب ہم یہ زبور گا رہے تھے تو میں زبور کی کتاب کے نیچے اکثر ٹرانسلیشن لکھی ہوتی ہے، کافی ساری لفظ ایسے ہوتے ہیں کافی جن کی ہمیں شاید سمجھ نہیں آتی ٹھیک سے، تو میں پڑھ رہا تھا کہ تپالی کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ ہلاک کر ڈالنے والی وبا۔ آج کے دور میں جب ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے کووڈ 19 کو لے کر، اس وبا کو لے کر، لیکن خداوند کے ماننے والوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی تسلی ہے کہ جو اب جن کی آس، جن کی امید، جن کا بھروسہ آسمانی باپ پر ہوتا ہے، یہ وبائیں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بالکل سیفٹی پریکاشنز نہ لیں،
ہمیں بالکل ہر قسم کی پریکاشنز لینی چاہیے، ہر قسم کے پروٹوکول کو فالو کرنا چاہیے، سارے SOPs کو فالو کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جن کی آس امید اور بھروسہ آسمانی باپ پر ہوتا ہے، جو خداوند کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے ہیں اور اس کے کلام کو مانتے ہیں، تو ان لوگوں کی لیے یہ ایک خوشخبری ہے کہ کوئی بھی وبا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آئیے ہم اپنی اس عبادت کو آگے بڑھائیں گے اور کلام مقدس میں سے اپنی آج کی پہلی تلاوت کی طرف بڑھیں گے، جو کہ لی گئی ہے استثنا اس کے 6 باب اور اس کی پہلی 9 آیات سے، ڈیوٹرانومی چیپٹر 6 فرسٹ 9 ورسز، اور یہ تلاوت ہمارے لیے آخم جارج اور مسز میری الہی کرے گی۔ آئیے ہم پہلی تلاوت سنیں جو کہ لی گئی ہے استثنا کی کتاب اس کا 6 باب پہلی 9 آیات، جس میں یوں لکھا ہے: یہ وہ فرمان اور آئین اور احکام ہیں جن کو خداوند تمہارا خدا نے تم کو سیکھنے کا حکم دیا ہے، تاکہ تم ان پر اس ملک میں عمل کرو جس پر قبضہ کرنے کے لیے پار جانے کو ہو، اور تو اپنے بیٹوں اور پوتوں سمیت خداوند اپنے خدا کا خوف مان کر اس کے تمام آئین اور احکام پر جو میں تجھ کو بتاتا ہوں زندگی بھر عمل کرنا، تاکہ تیری عمر دراز ہو۔ اس لیے اے اسرائیل، سن اور احتیاط کر کے ان پر عمل کر تاکہ تیرا بھلا ہو، اور تم خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے وعدے کے مطابق اس ملک میں جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے نہایت بڑھ جاؤ۔ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کر، اور گھر بیٹھے، راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا، اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا اور تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہو، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر برکت۔ Deuteronomy chapter 6 verses 1 to 9. These are the commands, decrees, and laws of the Lord your God, directed me to teach you to observe in the land that you are crossing the Jordan to possess, so that you, your children, and the children after them may fear the Lord your God as long as you live, by keeping all these decrees and commands that I give you, and so that you may enjoy long life. Hear, O Israel, and be careful to obey, so that it may go well with you, and that you may increase greatly in a land flowing with milk and honey, just as the Lord, the God of your fathers, promised you. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. These commandments that I give you today are to be upon your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road. Then you lie down, and when you get up, tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses and on your gates. This is the word of the Lord. Thanks be to God. اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔
اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ آئیے اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آج کے دوسرے زبور کی طرف بڑھیں جو کہ ہے زبور 103۔ ہم اس کا پہلا حصہ گائیں گے، تو آخ اے میری جان مبارک خدا ہے۔ بتایا ہے
बताया अपना मूसा उसने बनी इसराइल लगाओ है बनी इसराइल लगाओ रहनुमा है दुआ मेरी जानूरा रे खुदा ले ओ से दाहिना पवित्र सदा है ले ओ से दाहिना पवित्र सदा है दुआ मेरी जान आइए अब वक्त हुआ चाहता है कि हम कलाम मुकद्दस में से अपनी आज की दूसरी तिलावत की तरफ बढ़ें, जो कि ली गई है मत्ती रसूल की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 25वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। और इस तिलावत में हमारी रहनुमाई करेंगे मिस्टर जावेद लाल और अरमीन एल्बर्ट। उस वक्त यसु ने कहा, ऐ बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर की। हाँ ऐ बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया, और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के, और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। At the time, Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned, and revealed them to the little children. Yes, Father, for these was your good pleasure. All things have been committed to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and those to whom the Son chooses to reveal him. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. This is the word of the Lord. Amen. आमीन। आइए अब एक दफ़ा फिर हमारे पास मौका है कि हम अपने आसमानी बाप के हजूर झुकें और उससे अपने लिए आज खुदा उनका जिंदा कलाम मांगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिसेस अनीला कमर से कि वो आज के कलाम के लिए दुआ करें और आज के खुदा उनके खादिम के लिए दुआ करें कि जो भी कलाम वो आज हमारे साथ शेयर करें, हम उसे अपने दिलों में एक्सेप्ट करने वाले बन सकें और उसे समझ सकें। थैंक यू सलमान। आइए हम सब खुदावंद के हजूर झुकें और दुआ करें आज के कलाम के लिए और उसके बंदा के लिए, जिसके वसीला से हम आज उसके कलाम को अपनी जिंदगियों में जगह देंगे और सुनेंगे। ए रहीम बाप, जिंदा जलाली बुजुर्ग बरतर खुदावंद, हम सब तेरे हजूर आते हैं और शुक्रगुजार हैं आज के कलाम के लिए, जो हमारी जिंदगियों में बेशबहा खजाना है और उम्दा तरीन तोहफा है। खुदा बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तेरा जिंदा और जलाली कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। आज जब हम अपने आप को तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार करते हैं, बख्श दे कि तू हमारे दिलों और दिमागों को खोल दे, हमें आजिज़ी बख्श, और बख्श दे कि हमारे दिल और दिमाग रिसेप्टिव हों, और हमें ऐसी अंडरस्टैंडिंग बख्श
کہ ہم جان سکیں کہ تیرا کلام ہماری زندگیوں میں کیا معنی رکھتا ہے۔ اے زندہ جلالی خداوند، ہماری زندگیوں میں اپنے کلام کی ہنگر اور تھرسٹ کو بڑھا، کیونکہ لکھا ہے کہ میں ہی وہ روٹی ہوں جو زندگی دیتی ہے، جو بھی میرے پاس آتا ہے وہ کبھی بھوکا نہ رہے گا، اور جو مجھ پر ایمان لایا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ آئیے ہم سب آج کے خداوند کے بندہ کے لیے دعا کرتے ہیں، رسپیکٹڈ اینتھنی لیمول صاحب کے لیے۔ اے رحیم باپ، be with him, bless him with wisdom, renew his mind and thoughts with the Holy Spirit. As he speaks today and preaches your words to us today, let it be as it were the very words from you, Lord. اور بخش دے کہ تیرا یہ کلام ہماری زندگیوں میں بہت سا پھل لانے والا ہو، اور اسی طرح ہمارا ایمان تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ان کے کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ بڑھے۔ یہ ہم سب مانگ لیتے ہیں تیری ہی بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آمین۔ آئیے ایک دفعہ پھر ہم اپنی حمد و ثنا کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور گیت نمبر 308 گائیں گے، یہ بائبل مقدس خدا کا کلام، اور اسی گیت کے دوران ہم اپنے آپ کو خدا ان کے کلام کے لیے بھی تیار کریں گے۔
दिल में बसाए, रोज के नगमात गाए, अपनी बात इसमें अब हम अपनी आज की इस इबादत के एक और बहुत अहम हिस्से में दाखिल होने को हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ पर भी इस वक्त बैठे हैं, ख्वाह अपने घर से कनेक्टेड हैं या कहीं और से, बराए मेहरबानी हमने अक्सर नोटिस किया है कि लोग जूम पर जो मीटिंग में कनेक्ट करते हैं तो वो साथ साथ अपने पर्सनल काम भी कर रहे होते हैं और अक्सर औकात अपना माइक भी म्यूट करना भूल जाते हैं। तो बराए मेहरबानी अब हम खुदावन का जिंदा कलाम सुनने को है, तो इसलिए संजीदगी का मुजाहरा कीजिएगा, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने अपने कलाम को हर एक चीज से ज्यादा अजमत दी है। और अभी हम गा भी रहे थे कि ये दिल को बदले, ख्यालों को बदले, और दिल और ख्यालों को ये तभी बदलेगा जब हम पूरे ध्यान के साथ बैठकर उस कलाम को सुनेंगे। तो आइए बगैर कुछ और वक्त ज़ाया किए मैं दावत देना चाहूँगा खुदावन के एक बहुत अच्छे खादिम मिस्टर रेवरेंड एंथनी लैमुएल को, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के, और इसके साथ साथ सेक्रेटरी सिनोड चर्च ऑफ पाकिस्तान भी हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी खुदावन का जिंदा कलाम आपने आज हमारे लिए तैयार किया है वो हमारे साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू। ये मेरे लिए बड़ा ऑनर है। कोरोना के बायस, हेलो, ठीक है आवाज? जी बिल्कुल, वी कैन हियर यू अंकल। ओके, क्योंकि कोरोना के बायस ट्रैवलिंग बंद हो गई। लास्ट ट्रिप मैंने लास्ट ईयर जनवरी में यूके किया, तो उसके बाद ट्रिप्स नहीं हुए, ट्रैवल्स नहीं हुई हमारी, और मोस्ट मीटिंग्स हम जूम पे कर रहे हैं। तो बहरहाल ये भी एक अच्छी टेक्नोलॉजी है कि कम से कम हदों को पार करके और हम बड़े आसानी से इस बड़ी खूबसूरत सहूलत का इस्तेमाल करते हुए कलाम बांट सकते हैं और मीटिंग्स भी कर सकते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी कांग्रेगेशन का, भाई शाहीन का, सबका इस दावत के लिए, और ये मेरे लिए ऑनर है कि मैं आज आपके साथ कलाम बांट सकूं। कोरोना ऑफ कोर्स हेडलाइंस होती हैं आजकल। पिछले दिनों लाहौर में, पाकिस्तान में खासी परेशानी थी, और एक दिन मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैं कल जो मई 16 का फिगर देख रहा था, मई 16 के फिगर के मुताबिक 163.25 मिलियन पीपल हैव बीन अफेक्टेड बाय कोविड-19, एंड सो फार जो डेथ टोल है इज 3.385 मिलियन who have died। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि कितने लोग हैं जो मसीह के बगैर, मसीह को जाने बगैर, उसको पहचाने बगैर, उसको निजात दहिंदा माने बगैर इंतकाल कर जाते हैं। तो मैं कुछ देर के लिए खामोश बैठा रहा और सोचता रहा, और मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि चर्च के लिए, हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुदा के इस पुरुमीद जिंदा कलाम को पेश करें, औरों तक पहुंचाएं। आज का जो थॉट खुदा ने मेरे दिल पर रखा वो बेसिकली इस गुज़िश्ता 40 दिन के सीजन से मुतल्लिका है। 2 अप्रैल को हमने गुड फ्राइडे मनाया, 4 अप्रैल को ईस्टर था, अभी ये 13 तारीख को असेंशन डे था, और अब 23 मई को ईद पेंटिकॉस्ट होगी। और अगर हम इन सारी एक्टिविटीज को देखें तो मैं समझता हूं कि दिस इज बेसिकली द क्लाइमेक्स एंड द मेन पर्पस ऑफ द कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। और इस सबब से एक खूबसूरत अंदाज में हम इस सारी को देखते हैं। और जब आप गॉस्पल्स को पढ़ेंगे, अनंजील अरबा 4 गॉस्पल्स,
तो ये सारी एक्टिविटीज जो मसीह की आमद या मसीह का आना, मसीह का मरना, उसका जी उठना, सऊद फरमाना, आमदसानी, ये सारी बातों को 3 बुनियादी बातों में हम निचोड़ सकते हैं। और वो बुनियादी बातें हैं लव ऑफ गॉड, ग्रेस ऑफ गॉड एंड होप ऑफ गॉड। मैं कभी कभी बिल्डिंग की मिसाल देता हूं। मुझे कई दफा इत्तेफाक हुआ, आपको उधर सेंट एंड्रूज में, इल्फ्रेड में इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है फाउंडेशंस, क्योंकि सारी बिल्डिंग का जो वजन है उस फाउंडेशन पर आना होता है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बुर्ज अल अरब है, अपना बुर्ज खलीफा है, और बड़े बड़े जो टावर्स हैं, हाइट्स पे, इतनी हाइट पे जाते हैं। तो तहकीक कीजिएगा कि उसकी फाउंडेशन को वो कितना जोर देते हैं, उस पर उसकी तवज्जो देते हैं, उसकी डिजाइनिंग पर बड़ा टाइम सर्फ होता है, क्योंकि उसी ने ही सारी उस ऊंची बिल्डिंग का वजन उठाना है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है पिलर्स, या जिसको हम आज टेक्निकल जुबान में कहते हैं लोड बेयरिंग वॉल्स, क्योंकि इन्होंने फिर जो छत है, जो रूफ होगा, उसका वजन उठाना होता है। तो ये 3 बेसिक चीजें होती है कंस्ट्रक्शन के अंदर, जिस पर इंजीनियर्स और मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स और स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स बड़ी तवज्जो देते हैं, क्योंकि अगर इसमें कोताही हो जाए, कमी बेशी हो जाए, तो बिल्डिंग गिर जाती है, बिल्डिंग कमजोर हो जाती है। और मैं समझता हूं कि यही 3 खूबसूरत फाउंडेशंस हैं जो मसीह ईमान की बुनियाद है। इन तीनों बातों के पीछे एक कॉन्सेप्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग, एंड दैट इज रिलेशनशिप। यीशु मसीह के साथ ताल्लुक, यीशु मसीह के साथ रिश्ता, यीशु मसीह के साथ हमारा एक सिलसिलावार, एक फॉर एवर एक रिलेशनशिप, एक ताल्लुक बन जाना चाहिए। सो मैं इस पस मंजर में अपने मजमून की तरफ आना चाहता हूं। मत्ती की इंजील, उसके 28 चैप्टर्स हैं, और उसको हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। जो पहला हिस्सा है, बेसिकली पहले बाब के से लेकर 4 बाब की 16 आयत तक, इसको हम टाइटल अक्सर देते हैं, जो स्कॉलर्स देते हैं, वो टाइटल है द प्रेजेंटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी यीशु मसीह अपने आप को पेश करते हैं। और खासकर जब चौथा बाब पढ़ेंगे आप, जब वो आजमाए जाने के बाद जब वो आए, तो फिर लिखा कि उन्होंने फिर खुदा की बादशाह की मुनादी शुरू की। सो क्राइस्ट इज प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज द मसाया। उसके बाद 4 बाब की 17वीं आयत से लेकर 13 बाब की 52 आयत तक, ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो वाकयात पढ़ेंगे आप, ये खुदावंद यीशु अल मसीह की खिदमत से मुतल्लिका है, द मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट। और फिर 16 बाब की 21 आयत से अगर आप चलते हैं और बाब के आखिर तक, वो मसीह की मौत है, उसका जी उठना, और फिर इरशाद आजम। ठीक है, तो ये सारी इस मत्ती की बैकग्राउंड है। अब जो हवाला पढ़ा गया 11 बाब की 25 से 30 आयत, इसको समझने के लिए हमें बड़ा जरूरी है कि हम इसके जो कॉन्टेक्स्ट है, इसका सियाको सबाक है, उसको समझें। अगर आप मत्ती के 11 बाब की 16वीं से 19 आयत पढ़ें, तो बड़ा क्लियर नजर आता है कि यीशु मसीह को भी रद्द कर दिया गया, और यूहन्ना इस्तबागी या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसको भी रद्द किया गया। टेक्निकली इसको हम कहेंगे द रिजेक्शन ऑफ जीसस एंड जॉन द बैप्टिस्ट। और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था, बिकॉज एकदम से वो जो उलमा थे, उन्होंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद मत्ती 11 बाब 20 से अगर हम 24 को देखें, तो इधर 3 शहरों का जिक्र आता है, खराजीम, बैतसदा और कफरनूम। और जब आप इसको पढ़ेंगे तो बड़ा क्लियरली पता लगता है कि ना सिर्फ यानी वो रिजेक्शन नजर आती है, बल्कि इन शहरों ने भी यीशु को कबूल नहीं किया, ऑपोजिशन हुई, एक्सेप्टेंस नहीं हुई। तीसरी इंटरेस्टिंग बात यह है, और फिर ये भी मत्ती 12 बाब से हम पढ़ेंगे, 12 बाब 1 से
8 के अंदर हम जाएंगे जब, तो बड़ा क्लियर नजर आता है कि जो उलमा थे, जो फकी फरीसी थे, उन्होंने भी बिल्कुल रद्द किया, और ये लोग खास तौर पर हकीकत से वाकिफ थे लेकिन उनके अंदर फरोतनी नहीं थी, कानून पर जोर देते थे लेकिन उनके अंदर खुद वो उस कानून को इतना मुश्किल बना लेते थे कि इंसानों के लिए, लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। तो इस बैकग्राउंड के अंदर खुदावंद यीशु मसीह इस खूबसूरत आयत को बयान करते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर, टेक माय योक अपॉन यू। मैं दो बातें इस ताल्लुक से, इस नामे से, इस दावत आम के रेफरेंस से, यानी सबको दावत दी यीशु ने, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। मत्ती 11 बाब 25-26 पढ़ेंगे तो लिखा कि बच्चों पर जाहिर किया, यानी दूसरे मानों में ये उलमा, वो जो लफ्जी हेर फेर में फंस जाते हैं, जो बड़े आलिम बन जाते हैं, वो उस बहस में पड़ जाते हैं, अपनी दलील से और अपने इल्म की बुनियाद पर इन हकायक से वाकिफ नहीं है। तो पहला फैक्ट ये है कि दिस इज फॉर दोज जो बिल्कुल बच्चों की तरह दिल खोल कर इस बात को समझते हैं, और ये बिल्कुल हकीकत है, बच्चों की तरह, बच्चों की मानंद है खुदा की बादशाही। और फिर दूसरा फैक्ट है 11 बाब 27 आयत में लिखा है बड़ा क्लियर, बेटा जाहिर करता है, द सन चूजेस टू रिवील। यह हकीकत है, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। यीशु अल मसीह खुद कलमा है, और वो कलमा मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। दूसरा एक और जो बड़ा यूनिवर्सल फैक्ट इस बड़ी दावत में, इस दावत आम में नजर आता है, यानी आए बोझ से थके लोगों, यानी सबके लिए, वो ये है कि ये ओपन इनविटेशन है, सबके लिए, बिला इम्तियाज। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट कास्ट और कलर और क्रीड, इट्स फॉर एवरीवन, इट्स यूनिवर्सल। इसलिए मसीहत को हम कहते हैं मसीहत इज इंक्लूसिव। बहुत से मज़ाहिब हैं जिसमें आप पैदा होते हैं, आप शामिल नहीं हो सकते। You will be born into that religion, only then you can be that the follower of that religion. इस्माइली है, सिख है, आप पैदा होंगे उनके अंदर, आप खुद कन्वर्ट होकर उनमें जा नहीं सकते। तो इट्स एन ओपन इनविटेशन, सबके लिए दावत है। कम टू मी, मेरे पास आओ। और फिर क्या कहता है, कास्ट योर बर्डन्स ऑन मी, अपना बोझ मुझ पर डाल दो। ठीक है, उस बैकग्राउंड के अंदर समझिएगा इस बात को। शरीयत का बोझ उनके ऊपर है, वो जो उलमा है उनकी प्रेशर्स है। फिर यानी इस सारे पस मंजर में वो कहता है कि मेरे पास आओ। दूसरे मानों में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ट्रस्ट में, इत्मीद करो। पतरस पहला खत उसके 5 बाब की 7 आयत के मुताबिक उम्मीद है, और सबसे बड़ी बात यूहन्ना के 15 बाब के मुताबिक उसमें कायम रहने की बात है। सो व्हाट ही इज सेइंग, कम टू मी, मैंने पहले जिक्र किया, लव ग्रेस होप, ये जो खूबसूरत बात है, दिस इज बेसिकली अ रिलेशनशिप विद जीसस क्राइस्ट। दिस इज अ यूनिवर्सल इनविटेशन, एक दावत आम है, और उस दावत आम में यीशु मसीह अपने साथ इस रिश्ते में, इस ताल्लुक में, इस रिलेशनशिप में इनवाइट कर रहा है। मेरे पास आओ, अपना बोझ मुझ पर डाल दो। So simply means believe in me, abide in me and follow me. मुझ पर ईमान रखो, मुझ में कायम रहो और मेरी पैरवी करो। ये वो फार्मूला नहीं है जो बुद्धा ने अमन के लिए दिया। 4 बुनियादी बातें थी इल्यूमिनेशन, ना ये 5 वो सतून है इस्लाम के, और ना ये बहुत सी किताबें लिखी जाती सक्सेस के 10 रीजंस, the wonderful steps of 10 steps of successful and all that, ये सारी किताबें छपती हैं। ये इस किस्म की बातें नहीं है। It simply means relationship. And then the relief क्या है, यानी दावत आम है सबको, come to me, मेरे पास आओ, अपना बोझ मुझ पर दे दो, और क्या होगा, मैं तुम्हें
आराम दूंगा. A great relief. Not technically, it simply means come and have a relationship with me. मेरे साथ रिश्ता कायम करो, मेरे साथ ताल्लुक रखो. मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में, the revelation is Jesus Christ. ठीक है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का. So Jesus is the center, and this is the wonderful difference between other religions. So Jesus is the revelation, and to know Jesus is very important. खुदावंद यीशु मसीह हम जानते हैं बड़े ही थे, उनके वालिद साहब भी यूसुफ हम जानते हैं तरखान थे, बड़े ही थे. और मैं पढ़ रहा था डिटेल्स में, तो एक बड़ा काम होता था कि वो ये योग बनाते थे, जुआ बनाते थे. हम जो जिम्मेदारी को समझते हैं पंजाब के खास तौर पर, बैलों के गर्दन पर जिसको हम कहते हैं पंजाली, वो डाली जाती थी और फिर बीच में से वो निकल के तो हल के लिए वो चलता था. इसका ये मतलब है, उसके बरक्स जो यहूदी व्यू था, जो जूइश स्कॉलर्स थे, जो यहूदी उलमा लिखते थे, वो अक्सर कहते थे कि ये जुआ हमें तौरात का, तोरा का, टीचिंग का जुआ पहनने की जरूरत है. यानी दूसरे मानों में उसमें उस पंजाली के अंदर उस तोरा की तालीम के पंजाली में जकड़े रहने की जरूरत है. फिर वो कहते थे कि ये वो जुआ भी है जो 10 हुक्म का जुआ है, और फिर वो ये भी बयान करते थे कि ये खुदा की बादशाहत का जुआ है. उसके बरक्स जब हम दूसरे एंगल से देखते हैं तो यीशु मसीह फरमाते हैं उस तरह मुश्किल नहीं है जिस तरह यहूदी उलमा बना देते थे. लफ्ज इस्तेमाल हुआ मुलायम है, इंग्लिश का लफ्ज है फाइन. पता नहीं, मैं समझता हूं कि उर्दू का लफ्ज मुलायम ज्यादा खूबसूरत है. अगर कभी आपने जो मजदूर होते हैं, तरखान है या राज है या माली है, कभी गौर से, कभी तवज्जो से देखिएगा और फील करें जो राज के हाथ की तेसी होती है या माली के हाथ की जो खुरपी या रंबी होती है, उसको फील करें, वो उसके हाथ में इस्तेमाल हो के वो लकड़ी मुलायम हो जाती है. जो बैल की गर्दन पर, बैलों की गर्दन पर उस हल की, योक की जो पंजाली डाली जाती है, आप पंजाली के अंदर जब हाथ लगाएंगे तो मुलायम है, लेकिन मजदूर के, माली के, राज के हाथों पर कैल्सिफिकेशन हो जाती है, चंडी पड़ जाती है. इसी तरीके से बैल की गर्दन देखिएगा, वो एक चंडी सी पड़ जाती है, लेकिन पंजाली मुलायम हो जाती है. मैं पढ़ रहा था, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, कि जब वो योग तैयार करते थे तो उससे पहले वो बैल की पमाइश करते थे. फिर तैयार करके जब रफ तैयार हो जानी तो फिर बैल के गर्दन में डाल के चेक करना कि वो ठीक है कि नहीं फिटिंग उसकी, और फिर उसको अगर कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ती तो वो उसको कर देते थे. तो ये उसकी बैकग्राउंड थी. इस तरीके से वो योग तैयार होती थी, पंजाली तैयार होती थी या जुआ तैयार होता था. इसका जो ग्रीक लफ्ज है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. वो कहता है फिट फॉर यूज. इसका ये मतलब है फिट फॉर यूज, यूजफुल, इसका ये मतलब है. ठीक है. और फिर माइल्ड एंड प्लेजेंट, ये भी माने इसके, माइल्ड एंड प्लेजेंट, ये इसके माने हैं, जिसका तर्जुमा हम मुलायम करते हैं, जिसका तर्जुमा हम फाइन करते हैं. तो ये इसका मतलब है. दूसरे माने में व्हाट जीसस इज ट्राइंग टू से कि योक विद मी, मेरे साथ उस पंजाली में, उसमें जुट जाओ. आप 2 बैल करते हैं. मैं एक और वेरी इंटरेस्टिंग कि एक जो ट्रेंड पुराना बैल होता है, नया बैल उस जुए में वो साथ उसको जोतते हैं ताकि वो उसको काबू में रखे, उसको सीधा लेके चले, क्योंकि पुराना बैल इस बात से वाकिफ होता है, उसको मालूम है, वो ट्रेंड है. ये इसका मतलब है. व्हाट जीसस इज सेइंग दैट यू कम एंड योक विद मी एंड देन आई विल टीच यू. ये इसका मतलब है. इब्रानी का लफ्ज हरूफ तहजी लाम है, लमद कहते हैं उसको.
اور لمید جو یہ لفظ بھی اسٹوڈنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، آغاز ہے اس کا، اور یہ ایک طرح سے جو بیل کو چلانے کے لیے وہ لوہے کا ایک ڈنڈا ٹائپ ہوتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے تار کی طرح سخت طرح، یہ ڈنڈا استعمال کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے. دوسرے معنوں میں ڈسائپلشپ کا کانسیپٹ ہے. Yoking with Jesus means discipling with Jesus. Yoking with Jesus means that we are following Jesus. And yoking with Jesus means that we have a relationship with Jesus Christ. So it's very interesting. ملائم ہے. یعنی دوسرے معنوں میں what he's saying is that when I am with you, you will walk with me. یہ اس کا مطلب ہے. So ہم شکر گزار ہیں. یہ دعوت عام ہے. It's an open invitation for all. We need to accept the invitation. میں نے کووڈ کی بات کی اور میرے دماغ میں یہ بات آئی کتنے لوگ ہیں جو مسیح کو جانے بغیر دنیا سے چل بستے ہیں. یہ ہمارے لیے چیلنج ہے کہ ہم یسوع مسیح کو متعارف کرائیں اور ہم بھی بطور کرسچن، بطور ایماندار، ہم جو اس کے ساتھ چلتے ہیں ہم اس کے ساتھ چلیں، ہم اس کے ساتھ ساتھ چلیں. So what it means simply, it means our goal should be to follow the teacher. جوا پہننا مراد یہ ہے کہ ہم اپنے استاد کی طرح بنیں، اس ٹیچر کے ساتھ چلیں، اس سے سیکھیں. اور اس لیے جو ڈسائپلشپ کا تصور ہے بہت گہرا ہے. آج کل یونیورسٹیز میں ہم جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، 6 7 8 سال ڈگری لے کے آ جاتے ہیں. اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا. آپ اپنے استاد کے ساتھ چلتے تھے، سیکھتے تھے، رہتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، اور آپ اسی کو فالو کرتے تھے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ میری مانند بنو. اور استاد کی کوشش ہوتی تھی کہ اسٹوڈنٹ اس کو فالو کرے، اس کی طرح بن جائے. God is holy and we are supposed to be holy. ہماری کوشش کاوش رہنی چاہیے روزمرہ کی زندگی میں، اس رشتے کے اندر. جب ہم اس یوگ کو پہن لیتے ہیں، جب ہم اس رشتے میں آ جاتے ہیں، every day our everyday living should be that we transform ourselves day by day more like Jesus Christ. یہ اس کا مطلب ہے. It's a big challenge and we need to be transformed day by day. بہت سال پہلے ایک میں نے سٹوری پڑھی، ٹرو سٹوری تھی. میں کتاب تھی، ڈیووشنل استعمال کرتے تھے، اس میں یہ سٹوری تھی and I was very touched. کینیڈا کی سٹوری ہے. بہت برف پڑ گئی، تو جب برف پڑتی ہے تو وہ پہلے اپنی ڈرائیو کو صاف کرتے ہیں. سڑک تو وہ گاڑیاں آ جاتی ہے سرکار کی. So this gentleman came out to clean up his drive. تو جب اتنی برف تھی کہ اس کا تقریباً up to his knees وہ برف میں دھس رہا تھا پیر اس کا. تو then he heard some sound and then he from the corner of his eye he looked back and he saw his 4 years old son. He was trying to jump into his footsteps. Why? Because اگر وہ برف میں اپنا پاؤں رکھتا تو شاید he would have been in the snow up to his thighs. So when the father saw that, he started taking small steps تاکہ وہ آسانی سے قدموں میں آ سکے. And I think this is what Jesus does. یسوع مسیح ہمارے ساتھ یہ رشتہ قائم کرتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ چلنے والے ہیں. ہمارے لیے کلام میں بڑا کلیئر ہے. When we are willing, God will make it possible for us to walk with him. Let me conclude. میں نے یہ بات کی کہ ہم اس سیزن میں ہیں، گڈ فرائیڈے، ایسٹر، اسینشن، پینٹیکاسٹ، اور یہ ساری بنیاد 3 باتوں پر ہے. Our relationship with Jesus, basically 3 things. Our walk with Jesus is basically 3 things based on 3 foundations. Love, grace and hope. محبت اس لیے کہ خدا نے انسانوں سے اتنی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخشا. Christ went to the cross for us because of love. اگر خدا ایسا نہ کرتا، یہ خدا کی محبت کا اظہار تھا، تو ہم گنہگار ہی مر جاتے.
And this love is agape, unconditional love, गैर मशरूत. हम लोग selfish हैं. We will only do what we think when we get a benefit out of something. We will do that for another person. But love of God is basically unconditional. Grace इसलिए दावत आम है. That's the grace of God. It's for everyone. Nobody is better than anyone. कोई ज्यादा चहेता नहीं है. Nobody is special or chosen. Everybody is invited. And it's based on grace. And grace means that something which I did not deserve and it's given to me. मैं उस लायक नहीं, मैं उस काबिल नहीं, मैं उसका मुस्तहिक नहीं, लेकिन ये मेरे साथ हो जाता है, मुझे दिया जाता है. This is grace. और कलाम ये क्लियर है, गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन खुदा की बख्शिश मसीह यीशु के वसीला से हमेशा की जिंदगी है. This is because of God's grace. And the last thing is hope. इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में is hope. Hope क्यों? हम नाउमीद नहीं होते. पतरस कहता है we have a living hope because what Jesus did on the cross for us. उसके मरने से जी उठने के बायस हम नाउमीद नहीं है. हमारी उम्मीद जिंदा उम्मीद है. And let me tell you, Christianity is the religion which gives you the confidence. पूरा इत्मीनान देता आपको. अगर मसीह जी ना उठता हम नाउमीद होते. मसीह साउथ फरमा के जिंदा उठाएंगे, वापस भी आएंगे. सो आज मेरा चैलेंज है. चैलेंज ये है, जब यीशु ने फरमाया कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, ये एक दावत आम है. मेरे पास आओ, अपना बोझ मुझ पर डाल दो, मैं तुमको आराम दूंगा. This is an open invitation. Let us examine ourselves. Let us ask ourselves where we stand today in our relationship with Jesus Christ. Are we being discipled by Jesus Christ? Are we following Jesus Christ? सोचने की जरूरत है. और ना सिर्फ सोचने की, बल्कि अगर हम फॉलो करते हैं, how are we sharing this good news with others? मैंने शुरू में बताया कोविड की डेथ्स का. I wonder, I wish we can realize कौन है जो मसीह को जाने बगैर, इस पैगाम को सुने बगैर दुनिया से चले जाते हैं. So we are thankful to God for His love and grace for us. यीशु की आमद उम्मीद का सबब है. हम शुक्रगुजार हैं. Take my yoke upon you and learn of me. मेरा जुआ मुलायम है. खुदावंद आपको बरकत दे. आइए हम दुआ करें. खुदावंद तेरे पाक कलाम के लिए शुक्रगुजार है. इसको हमारे दिलों पर नक्श कर, अपने रूह का मसा बख्श. बेशक खुदावंद तेरी मोहब्बत जाहिर होती है. यीशु की आमद हमारे लिए आराम का सबब है, दावत आम है. बख्श कि हम सब इस दावत को कबूल करने वाले हों और तुझे निजात देंदा कबूल करने वाले हों. तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ. हम सबको बड़ी बरकत दे और खुदावंद आलमगीर कलीसिया को बरकत दे. यीशु के नाम से आमीन. आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया. गॉड ब्लेस यू. आइए वक्त हुआ चाहता है कि हम सब अपने ईमान का इकरार करें रसूलों का अकीदा पढ़ते हुए. मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा. मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर. आमीन. आइए एक दफा फिर हमारे पास मौका है कि हम सब
अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद की हजूरी में झुके और अपनी तमाम तर इल्तिजाएं, मुनाजात, सिफारशात खुदावंद के हजूर रखें और उससे दुआ करें कि जिन भी प्रॉब्लम्स को हम सब लोग फेस कर रहे हैं या हमारे अजीज़ व क़ारिब फेस कर रहे हैं, हमारा आसमानी बाप उनमें से हमें निकाले ताकि हम एक दफ़ा फिर अपने कदमों पे खड़े हो सके और हमारा ईमान पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो। मैं दरख्वास्त करूंगा मिसेज़ आशा नवीद से कि वो इस दुआ में हमारी रहनुमाई करें। मसीह यस्सु में मेरे अज़ली अब्दी जलाली और बुजुर्ग बाप, मैं दिल की गहराई से खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ और तमजीद करती हूँ खुदावंद, क्योंकि तू भला है, रहम करने वाला, शफकत करने वाला खुदा है खुदावंद। इस जिंदगी के लिए, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, इस सलामती के लिए खुदावंद, जो तूने आज के दिन तक खुदावंद हमें बख्शी है खुदावंद, मैं दिल से तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद। हम उन बहुत से लोगों से अच्छे नहीं खुदावंद जो तुझ में सो गए हैं खुदावंद, लेकिन खुदावंद तूने हमें ये दिन बख्शा कि हम तेरी हजूरी में आए, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें खुदावंद। बख्श दे खुदावंद, इसी तरह हम तेरे कदमों में आना सीखें, इस ईमान के साथ कि खुदावंद तू हमारी दुआओं को सुनता है खुदावंद, और खुदावंद तू हमें ऐसी तौफीक बख्श कि खुदावंद हम एक बच्चे की तरह ईमान लाकर खुदावंद तेरे पास आए, तेरे जुए को खुदावंद जो कि नरम और मुलायम है खुदावंद हम अपने ऊपर लें और अपने सारे बोझों को खुदावंद तेरी हजूरी में खुदावंद रखें, क्योंकि खुदावंद तू ही एक वाहिद खुदा है जो खुदावंद हमें हर तरह की मुसीबत से, हर तरह के दुख से, हर तरह की तकलीफ से बचाता है खुदावंद, क्योंकि खुदावंद तेरा वादा है, तू हमें अपने परों में छुपा लेता है खुदावंद, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले छुपा लेती है खुदावंद, बिल्कुल ऐसे ही खुदावंद तूने आज के दिन तक हमें अपने परों में छुपा कर रखा है। तेरी इस बड़ी हिफाजत के लिए, इस निगहबानी के लिए खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद। आज के दिन के लिए खुदावंद, आज के दिन की इस इबादत के लिए खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ, जो खुदावंद तूने हमें फजल बख्शा कि खुदावंद हम तेरी हजूरी में एक खानदान की सूरत में आए। तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद उन सब नेमतों के लिए, उन सब बरकतों के लिए खुदावंद जो तूने खुदावंद हमारी कलीसिया को खुदावंद बख्शी है। तेरा शुक्र हो और तेरी तारीफ हो खुदावंद। उन सब खानदानों को तेरी हजूरी में लेके आती हूँ खुदावंद, जिनको खुदावंद तूने आज तक अपनी हिफाजत में रखा, अपनी फैमिलीज को, अपने तमाम अजीजों को, रिश्तेदारों को खुदावंद उनकी हिफाजत के लिए, उनकी निगहबानी के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजार हूँ, शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद इस टेक्नोलॉजी के लिए जिसके वसीला से खुदावंद हम सब तेरी हजूरी में आते हैं, तेरे कलाम को सुनते हैं और खुदावंद तेरी प्रस्तिश करते हैं खुदावंद। इस बड़े काम के लिए, इस टेक्नोलॉजी के लिए तेरा शुक्र हो, और खुदावंद मैं उन सब बच्चों के लिए और उन लोगों के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहती हूँ खुदावंद, जो इस ऐप को रन करने में हमारी मदद करते हैं। खुदावंद मैं उन लोगों को तेरी हजूरी में लेके आती हूँ जिन्होंने खुदावंद कोरोना वायरस की वजह से अपने अजीजों को खुदावंद खो दिया। खुदावंद तो उनके साथ हो, अपना रहम उन पर कर, अपनी तसल्ली और अपना इत्मीनान खुदावंद उन लोगों को बख्श दे, और खुदावंद इतना हौसला और कुव्वत और ताकत दे खुदावंद कि वह तुझ में और मजबूत बने, और खुदावंद तेरे नाम से खुदावंद बहुत सी खुदावंद बरकतें उन लोगों को मिले। और खुदावंद मैं उन लोगों को भी तेरी हजूरी में रखती हूँ खुदावंद, जो आज भी इस वक्त भी खुदावंद इस प्रॉब्लम से खुदावंद गुजर रहे हैं, कोविड-19 की वजह से दुख में और तकलीफ में है खुदावंद, उनके साथ हो। तेरा हाथ खुदावंद उन लोगों के लिए बढ़ जाए, और खुदावंद उनको कामिल शिफा अता कर। खुदावंद तमाम फ्रंट लाइनर्स को तेरी हजूरी में लेके आती हूँ,
डॉक्टर्स को, नर्सिस को और उन तमाम लोगों को खुदावंद जो किसी ना किसी तरीके से खुदावंद नस्ल इंसानी की मदद कर रहे हैं खुदावंद, तो उनके साथ हो, उनको ब्लेस कर बरकत दे और उनके खानदानों को भी खुदावंद बरकत दे। मेहरबान खुदावंद, अपनी यूके की गवर्नमेंट को खुदावंद तेरी हजूरी में रखती हूँ खुदावंद उनको इतनी हिकमत और दानाई अता कर और खुदावंद डिवाइन विजडम बख्श ताकि खुदावंद जो भी कानून वो बनाए वो खुदावंद इस मुल्क में रहने वाले लोगों के लिए अच्छे हों, ताकि खुदावंद उन कानूनों के खुदावंद होते हुए तेरे लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से जिंदगी को बसर कर सकें। मेहरबान खुदावंद, जिन लोगों ने कोरोना वायरस की वजह से अपनी जॉब्स को खो दिया है और फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में है खुदावंद, उनके साथ हो। अपने आसमान को जो तेरा अच्छा खजाना है खुदावंद उनके लिए खोल दे, ताकि खुदावंद उनको तेरी ही आस हो और वो तेरी ही तरफ अपनी नजरों को उठाए, क्योंकि तू यहोवा यरी है खुदावंद जो सबको मुहैया करता है। अपने बुजुर्गों को खुदावंद तेरी हजूरी में लेके आती हूँ, जो कि खुदावंद हमारा असासा है, हमारा सरमाया है। खुदावंद तू इन बुजुर्गी की और पीरी के याम में खुदावंद इनके साथ हो, इनको बरकत दे, जिंदगी दे, सेहत और तंदुरुस्ती अता कर। खुदावंद खास कर मैं मिन्नत करती हूँ मिसेस एगी खान के लिए, आंटी सुखी के लिए, आंटी अख्तर के लिए, मिसेस लवीजा इमानुएल के लिए और मिसेस रशीदा मुश्ताक के लिए। खुदावंद इन लोगों के साथ हो और खुदावंद इन्हें जिंदगी की दराजी बख्श दे। मिन्नत करती हूँ खुदावंद भाई एल्डर दिलशाद मसीह के लिए, भाई आरिफ उनील के लिए और भाई एल्बर्ट डैनियल के लिए, बहन सनोवर के लिए और अपने आप के लिए। खुदावंद हमें कामिल तौर पर सेहत और तंदुरुस्ती अता कर और खुदावंद हर तरह की दुख और तकलीफ और बीमारी को खुदावंद हमारी जिंदगी से दूर कर, ताकि खुदावंद हम तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल देने वाले हों। मेहरबान खुदावंद, मैं लकी नईम को और बेन आइजक को खुदावंद तेरी हजूरी में रखती हूँ। उनकी सारी डिसेबिलिटीज में खुदावंद तो उनके साथ हो, उनका मददगार हो और खुदावंद उनके खानदानों को बड़ी हिम्मत और ताकत बख्श, ताकि खुदावंद वो इस मुश्किल वक्त में खुदावंद इन लोगों को अच्छे से लुक आफ्टर कर सके। खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करती हूँ मिसेस दिलावर के लिए जो कि लाहौर में है और खुदावंद जो जिनकी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है खुदावंद, तू खुदावंद अपनी बंदी के साथ हो और खुदावंद हर तरह की तकलीफ और मुश्किल से खुदावंद तू अपनी बंदी को बचा। मिन्नत करती हूँ खुदावंद बिशप कॉलिन थियोडोर के लिए जो कि वेंटिलेटर पे है, बिशप कामरान के लिए और मिसेस कामरान मसीह के लिए जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है। खुदावंद तो इनके साथ हो और खुदावंद इनकी सारी तकलीफ और दुख में खुदावंद तू खुदावंद इनको रिहाई बख्श। खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करती हूँ बहन रुमीला कुंदन के लिए जो कि खुदावंद कैंसर के प्रॉब्लम में है। खुदावंद तू खुदावंद अपनी बंदी के साथ हो, बड़ी कुव्वत और ताकत बख्श खुदावंद, और उसके सारे दुख में खुदावंद तू ही उसका पुरसाने हाल हो और तू उसका मददगार हो। मेहरबान खुदावंद मिन्नत करती हूँ सूफी इलियास के लिए जो कि रावलपिंडी में रहते हैं, जो कि खुदावंद मुकम्मल तौर पर सेहत याब नहीं है। खुदावंद तू कामिल सेहत अता कर और खुदावंद इनको जो भी दुख है, जो भी प्रॉब्लम है खुदावंद तू खुदावंद अपने बंदे को खुदावंद उससे रिहाई बख्श, ताकि खुदावंद वो तेरे नाम की गवाही दे सके। मेहरबान खुदावंद मैं इंडिया के लिए खुदावंद दुआ करती हूँ। खुदावंद जो तकलीफ और जो दुख जो अजियत खुदावंद इस वक्त वहां पर है खुदावंद सिर्फ तू ही खुदा है और तू ही खुदावंद ऐसी जात है खुदावंद जो उन लोगों को इस मुश्किल से और इस तकलीफ से निजात दिला सकती है। खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करती हूँ खुदावंद तो अपने हाथ को बढ़ा और खुदावंद अपने लोगों को इस तकलीफ से निजात बख्श दे। खुदावंद बाप तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि तूने हमारे मुल्क पर अपना रहम किया है।
मैं तेरी मिन्नत करती हूँ तो यही अपना रहम और यही अपना शिफा वाला हाथ खुदावन इंडिया पर भी बढ़ा। और खुदावन वो जो लोग तड़प रहे हैं, दवाई नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, खुदावन बहुत सी खुदावन उन लोगों के पास चीजों की कमी है, मेहरबान खुदावन तू अपना फजल कर और खुदावन उनको इस तकलीफ से आजाद कर खुदावन। क्योंकि खुदावन जो लोग तो तेरी तरफ आते हैं, तेरी तरफ फिरते हैं खुदावन, तो उनको कभी मायूस नहीं करता। और खुदावन जो लोग ईमान से खुदावन तेरी हजूरी में रखना में खड़ा होते हैं दूसरे लोगों के लिए, खुदावन तो उनकी दुआओं को सुनता है। खुदावन मैंने बड़े ईमान के साथ खुदावन रखने में खड़े होकर खुदावन तेरे लोगों की दरखास्तें खुदावन तेरे हजूर में पेश की हैं। मैं तेरी मिन्नत करती हूँ खुदावन, इन सब दरखास्तों को सुन, अपने बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से खुदावन तू हमें जवाब दे। मांगती हूँ तेरे अब्दी और जलाली नाम के वसीला से, आमीन। आमीन। आइए अब एक दफा फिर हमारे पास मौका है कि हम अपने आसमानी बाप की उस रहमत, उस प्यार, उस मोहब्बत को याद करें जो उसने हमसे की है। गीत नंबर 372 गाते हुए, तेरी रहमत अब्दी है, तेरा प्यार निराला है। तेरा प्यार निराला है, तेरा प्यार निराला है। तेरे प्यार की किरणों से, तेरे प्यार की किरणों से अर्श उजाला है। रहमत अपनी है, तेरा प्यार निराला है। रहमत अपनी है, तेरा प्यार निराला है। मेरा फिदिया बना है तू, मेरा फिदिया बना है तू, मेरा फिदिया बना है तू, मेरा इब्जी बना है तू, मेरा इब्जी हुआ है तू। रहमत अपनी है, तेरा प्यार निराला है। रहमत अपनी निराला है। तू जान से प्यारा है, मेरे दिल का सहारा है। तू जान से प्यारा है, मेरे दिल का सहारा है, मेरे दिल का सहारा है। रहमत अपनी है, तेरा प्यार निराला है। तेरी रहमत अपनी है, तेरा प्यार निराला है। तूने प्यार किया मुझको, तूने माफ किया मुझको, तूने प्यार किया मुझको, तूने माफ किया मुझको, तूने माफ किया मुझको। रहमत अपनी है,
निराला है। तेरे प्यार की किरणों से, तेरे प्यार की किरणों से हर सिमत उजाला है। रहमत अपनी है, तेरा प्यार निराला है, तेरा प्यार निराला है, तेरा प्यार निराला है। अब हमारी इबादत ऑलमोस्ट अपने इख्तिताम को पहुंचने वाली है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं एंथनी लैमुएल साहब के कि जिन्होंने आज एक दफ़ा फिर हमारे लिए वक्त निकाला और खुदा उनका जिंदा कलाम हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच एंथनी लैमुएल साहब, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी जब जब आपके पास वक्त होगा आप हमें ज़रूर टाइम देंगे ताकि हम खुदा उनका जिंदा कलाम आपसे सुन सकें। कमिंग संडे जो कि 23 मई को आ रहा है, उस दिन हमारे साथ खुदावंद के एक और बहुत अच्छे खादिम रेवरेंड राना युआब खान होंगे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर हमें उस संडे ज्वाइन करें ताकि हम खुदावंद के कलाम को सुन सकें और उसके वसीला से बरकत पा सकें। और आखिर में आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने का बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त रिक्वेस्ट करूँगा एंथनी लैमुएल साहब से कि वो दुआए रब्बानी और कलमात बरकत में हमारी रहनुमाई करें। हम दुआ करें। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूरों में माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत हमारे साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा दा पाक हमेशा वाला, खुदा दा पाक हमेशा वाला, खुदानी पे मुबारक हो रहेगा, खुदानी पे मुबारक हो रहेगा।